السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور اسلامک کیلنڈر کا پہلا سال ہے، پہلا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کتاب کو فالو کریں گے مولانا اکرم الدین سلفی کی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اس اثناء میں آئیں گے لیکن ان کو پیچھے بھگا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق دریافت کریں گے تو بتایا جائے گا انہم قد احدثوا بعدک، کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور بھگا دو، ان کو دور بھگا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ دلالۃ وکل دلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ کوئی بھی جو کر رہے ہیں کہاں تک ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی غلط چیزیں ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا نہیں کرنی چاہیے۔ چیزیں جھوٹی محبت کا جو دعویٰ ہے نہیں ہمیں کرنا چاہیے اہل بیت سے۔ تو جو اہل شیعہ نے ان کو بدعت کو دین میں داخل کیا ہے، وہاں اہل سنت نے بھی بہت ساری کچھ بدعت اختیار کر رکھی ہے۔ مثلاً کیا ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا، حالانکہ حج یا عمرہ کرنے والے شخص کو جو احرام کی حالت میں ہے اس کے علاوہ سال کے کسی بھی دن یا مہینے میں نکاح میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں شادی کی۔ دراصل اس مہینہ کو ایک خاص باطنی سازش کے تحت ماہ ذی الحجہ اور اس کے مہینے کو پانے والے ہر فرد کو حج اور عمرہ کرنے والے سے فوقیت دی گئی ہے، جس سے عام سادہ لوگ اور لاشعوری طور پر پڑھا لکھا طبقہ غافل ہے تو ان کے ظاہر ہے چکر میں آ جاتے ہیں۔ پھر تو نمبر 2، 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا، یعنی خوب کھانا پکانا اور لوگوں کو دینا، اس کا دارمدار انتہائی ضعیف اور من گڑت روایات پر ہے، جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسین سے اہل نواسب کی دشمنی پر مبنی اختراع ہے۔ تو یہ بہت ایک یعنی کہ گھڑی گھڑائی باتیں جو ہے ہمیں نہیں کرنی، ہم نے کیا دیکھنا ہے، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم
मुसलमानों के साल का पहला महीना है। मुसलमानों को अपने तमाम मामलात और अहकाम इसी सन कमरी व हिजरी से वाबस्ता करने चाहिए। तफसीर माजिदी में है, मुतअद्दिद उलमा ने आयत 36 सूरत तौबा पारा 10 से ये हुक्म भी मुस्तनबत किया है कि मुसलमानों पर अपने मामलात व इबादत में सन कमरी अरबी की पाबंदी वाजिब है और सन अजमी व सन रूमी शमसी की पाबंदी जायज नहीं है। तो ये फिर हम किसी और के यदि के पाबंद क्यों रहे जब हमारे पास अपना कैलेंडर मौजूद है। तो माहे मुहर्रम में करने के काम क्या है? मसनून अमल, सबसे मसनून अमल रोजा है इस महीने का। माहे मुहर्रम में 9 9 और 10 का या 10 या 11 का रोजा रखना मसनून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मुहर्रम को रोजा रखने से गुज़श्ता 1 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। अब ये है कि 9 और 11, 9 जा 11 का रोजा क्यों साथ में है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए, जब मदीने में तशरीफ लाए थे तो देखा कि यहूद रोजा रख रहे हैं। तो उनसे पूछा, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम निजात दिला के फिरौन से समंदर पार करके आए थे, तो वो हम रोजा रखते हैं शुक्राने के तौर पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम हम इनसे ज्यादा हमारे करीब हैं, तो हम रोजा रखेंगे इंशाल्लाह अगले साल। लेकिन हम किसी कौम की यानी कि मुशाहबत नहीं करेंगे। हम एक रोजा मिला के रखेंगे, चाहे 9 और 10 का या 10 और 11 का। तो 2 रोजे रखने होते हैं फिर न। फिर एक और चीज है, अशराए मुहर्रम में खास तौर पर खाना हलवा वगैरह पकाना, घर में फराखी करना, सबीले लगाना, ज़ियाफ़तें करना वगैरह वगैरह जी। और किसी के इसी किस्म के जो बाकी अमूर हैं, कोई कई लोग कुज्जी कहते हैं, कुज्जी ठूठी पता नहीं क्या है, वो भरते हैं, छोटे छोटे होती हैं, उनमें डालते हैं चीजें और देते होते हैं। कईयों ने मन्नतें मानी होती हैं, तो ये सारी गलत चीजें हैं। जाहिर है कि इमाम हुसैन की उन्होंने किया हुआ है, साथ जोड़ी हुई है कि मदयान ने मोहब्बत हसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दिन मातम की चीजें पैदा की और दुश्मनाने हुसैन ने इनके मुकाबले पर खुशी के अमूर इसी तरह इसी दिन आजाद कर लिए। तो उससे फिर अब ये दस्तरखान वसी करने की जो हदीस लाते हैं, वो हकीकत इसकी क्या है? ये एक हदीस जो कहते हैं इसमें कि इसको किन किन लोगों ने मनगढ़ंत, मौजू और ज़ईफ कहा है। इमाम अहमद, इमाम अकीली, इमाम मोहम्मद वदाह, हाफिज इब्न जौजी, इमाम जरकशी, इमाम इब्न तैमिया, इमाम हाफिज इब्न कय्यम, अल्लामा मजिदुद्दीन फिरोजाबादी, इमाम बहीकी के नज़दीक ये हदीस मौजू, मनगढ़ंत और ज़ईफ है। इमाम अहमद फरमाते हैं इसके बारे में, यानी इसका कोई असल नहीं और ना कोई इसकी सनद साबित है। इमाम इब्न तैमिया भी लिखते हैं कि इसके इस दिन की फजीलत के लिए बहुत सी झूठी और खुद साख्ता अहादीस जिनका कोई सबूत नहीं है गाड़ ली गई है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक और सहाबा इकराम ताबेइन तबा ताबेइन व आइम्मा के ज़माने में तौसीए ताम का कोई ज़िक्र और सबूत नहीं है। यानी कि ये खुद से गढ़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये इमाम मोहम्मद बिन वदाह अपनी किताब अल बदाया व नहाया में लिखते हैं 45 नंबर याहया बिन याहया 234 से नकल करते हैं। यानी मैं इमाम मालिक के ज़माने में मदीना मुनव्वरा और इमाम लईस इब्ने कासिम इब्ने वहाब के ज़माने में मिस्र में था। ये रात अशूरा मुझे वहां आई तो मैंने किसी को भी इसके मुतल्लक जिक्र करते नहीं सुना। अगर उनके पास उसका सबूत होता तो बाकी रवायात की तरह इसका भी जरूर जिक्र करते। इब्ने ऐनिया ने जो कि बाज कहते हैं कि सॉरी कहा है, बाद में नाम लिया है, का तजजिया नकल किया जाता है। ये कोई सनद नहीं, ये कोई सनद नहीं है, एक किस्म का, तो किसी की बात है, किसी का तजजिया है एक, जिसको ये कोई नकल करते हैं, सनद की बात कोई नहीं है। यानी इब्ने आयनिया का तजजिया कोई दलील नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें माल दे रखा था, उसका सबब तो ये नहीं है कि वो अशूरा के दिन तोसी किया करते थे। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को काफी दौलतमंद कर दिया था। हालांकि वो अशूरा के दिन तोसी और जनी तोसी नहीं करते थे, ज्यादा खाना पका के नहीं बांटते थे, जहाँ पकाते नहीं थे एक्स्ट्रा। शेखुल इस्लाम इमाम हाफिज इब्ने तैमिया रहमुल्लाह मुहर्रम की बिदात का जिक्र करते हुए लिखते हैं, जनी ये बुरी बिदात में से है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने सुन्नत करार नहीं दिया। और इमाम मालिक, इमाम सौरी, ये इमाम लईस, इमाम अबू हनीफा हनीफा इमाम औजारी और औजाई, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम इसहाक और इन जैसे मुसलमानों के किसी इमाम ने मुस्तहब नहीं जाना। लिहाजा हर मुसलमान को इससे परहेज करना चाहिए और जो अमल सही हदीस से साबित है उसी पर अमल करना चाहिए। तो ये बाकी जो शिया हजरात करते हैं, ताजिया वगैरह बनाते हैं, महफिलें सजाते हैं और काले लिबास पहनती हैं औरतें और सोग मनाते हैं, ये इनका भी यानी कि हराम करार दिया गया है इनको भी। तो जहाँ पे अ, जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोका है ना। तो कुरान मजीद में है अताबुदून मा तनहितून वल्लाहु खलक़कुम व मा तामलून। क्या तुम अपनी तराशी और बनाई हुई चीजों की इबादत करते हो, हालांकि अल्लाह ताला ने तुमको और तुम्हारे अमलों को पैदा किया है। यानी खालिक को छोड़कर मखलूक की इबादत क्यों करते हो। लिमता अबुदु माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। आप ऐसी चीज की क्यों पूजा करते हैं जो ना सुन सकती है और ना देख सकती है और ना कफायत कर सकती है। तो ये कुरान की भी आयतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला क्या था। ए, ए, अबू अबू अलहियाज असदी कहते हैं कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे कहा, मैं आपको ऐसे काम पर भेजता हूँ जिस काम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था। हर जानदार की, वो काम क्या था कि हर जानदार की तस्वीर यानी बुत मुशाहबत को मिटा डालो और हर ऊंची कब्र को बराबर कर दो। तो ये फिर जो कुछ माह मुहर्रम में हमारे लोग और भी बहुत सारी बिदात करते हैं, करो कब्रों पर जाके गिलाफ चढ़ाते हैं, खासकर
जिन कब्रों की पूजा की जाती है, वो कब्र वालों के जाके नई चादरें चढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें हमें पत्थर और मट्टी पर कपड़ा उड़ाने की इजाजत व हुक्म नहीं दिया। गैर अल्लाह की नजरो न्याज करना ये भी है कि मौलाना महमूद अल हसन शेख उल हिंद जे फरमाते हैं, हाशिया आयत वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह सूरत बकरा के तहत लिखते हैं, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी बुत या जिन या किसी रूह खबीस या पीर या पैगंबर के नामजद करके उस जानवर की जान उनकी नजर करके उनके तकर्रब या रजाजुई की नीयत से ज़िबा किया जाए और महज उनकी खुशनुदी की गर्ज से उसकी जान निकालनी मकसूद हो कि इन सब जानवरों का खाना हराम है। गो बेवक्त ज़िबा तकबीर पड़ी हो और अल्लाह का नाम लिया हो। क्यों? क्योंकि मकसद पीछे क्या है? किसी को खुश करना, राजी करना, उनका तकर्रब चाहना, और अल्लाह ताला का नाम लिया हो, क्योंकि जान को जान आफरीन के सिवा किसी दूसरे के लिए नजरो न्याज करना हरगिज दुरुस्त नहीं कर सकते। गैर जानदार का यही हुक्म है। बहुत से लोग इस माह में शादी ब्याह से परहेज करते हैं, शादी ब्याह भी नहीं करते और इस माह को सोग का महीना तस्वर करते हैं। ये ख्याल बिल्कुल गलत और बातिल है। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। किसी की वफात पर आंसू बहना और दिल का गमगीन होना इंसान का ये फितरी अमल है और रहमत का लाजमी तकाजा है। इसके साथ शरीयत ने सब्र और एहतसाब, सब्र करके सवाब की उम्मीद करने वाले को अजर अजीम का मुस्तहिक करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पर फरमाया था, आंख से आंसू बह रहे हैं और दिल गमगीन है और हम जुबान से कुछ नहीं कहते मगर वो ही जो हमारे रब को पसंद है, और हम ए इब्राहिम तेरी जुदाई से गमगीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक नवासे की वफात के मौके पर फरमाया था, यानी अल्लाह ताला के लिए है जो उसने अखज कर लिया और उसी के लिए है जो उसने दिया, और उसी के नजदीक हर चीज का वक्त मुकर्रर है। चाहिए कि सब्र करे और सवाब तलब करे। ये क्योंकि मातम वगैरह जो किया जाता है, सब्र, अल्लाह ताला ने सब्र करने का कहा है, गलत बिदात नहीं घड़ने का। कुरान मजीद में सब्र करने वालों की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, लेकिन जुबान से वावेला करना, जज़ा फजा करना, चीखना चिल्लाना, गिरेबान फाड़ना, सीना कुबी करना, रुखसार पीटना, नुहा करना, बाल मंडवाना, 3 दिन से ज्यादा सोग करना, यानी कि कोई फौत हो जाए तो उसके 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं किया जाता। 3 दिन से ज्यादा सोग करना शरीयत में हराम और मना है और जुमाना जाहलियत की रस्म रस्म बिद्दत है। हाँ, वो औरत जिसका शोहर फौत हो जाए उसका 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत है, सोग का है। हाँ, अगर वो हामला है तो बच्चा जन्मने तक है, चाहे बच्चा 2 घंटे के शोहर के फौत होने के 2 घंटे के बाद ही जन्मते तो फिर वो उसकी इद्दत खत्म हो जाती है। अन अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से जे मरवी है
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रखसार पीटे, गिरेबान चाक करे और ज़माना जाहिलियत की तरह पुकारे चिल्लाए, वो हमसे नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी नौहा यानी बयान करने वाली ने, अब जब औरतें कहती हैं ना, बयान करने वाली ने अगर मौत से पहले तौबा ना की तो क़यामत के दिन इस हाल में खड़ी की जाएगी कि उसके बदन पर बदबूदार तेल का कुर्ता होगा और खारशी ज़र्रा होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हवाले दिए गए हैं, मुस्लिम की थी ये हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना बारिउ मिम्मन हलाका व खराका, बुखारी और मुस्लिम। मैं बरी हूँ, यानी मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं जो मुसीबत की वजह से बाल मुंडवाए और नौहा से आवाज बुलंद करे और कपड़े और जिस्म को फाड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी गम का इजहार अगर हाथ और जुबान से है तो शैतान की तरफ से है, यानी कि गम का इजहार ना हाथ से करना है ना जुबान से करना है। अबू दाऊद, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौहा करने वाली और सुनने वाली पर लानत की है। एक जो नौहा कर रही है और जो बाकी सुन रही है, दोनों पर ही लानत है। इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह ने फरमाया, ईमान के लिए सब्र का वही मुकाम है जो जिस्म के लिए सर का है। जब सर न रहे तो जिस्म नहीं रहता, इसी तरह जब सब्र ना रहे तो ईमान नहीं रहता। सुभान अल्लाह। और उन्होंने एक और हदीस फरमाई, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबत के वक्त मुसलमान का अपने हाथ को रान पर मारना उसके अजर और सवाब को बर्बाद कर देता है। यानी कि वो ऐसे हाथों को, दोनों हाथों को जोर जोर से रान के ऊपर मारते हैं ना, जब अ, कोई मुसीबत का वक़्त आता है, ख़ासकर कोई फ़ौत हो जाए तो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वफ़ात के वक़्त फ़रमाया था, यानी वसीयत की थी कि मुझ पर, यानी मेरी वफ़ात के बाद ना मुँह नोचना और ना बाल खोलना और ना वावेला करके चीखना और ना मातम करना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में शहादत के करीब अपनी बहन हमशीरा ज़ैनब को आखिरी वसीयत ये की थी कि ए बहन, जो मेरा हक तुम पर है उसकी कसम देकर कहता हूँ कि मेरी मुसीबत मुफारकत पर सब्र करो। बस जब मैं मारा जाऊं तो हरगिज मुंह ना पीटना और बाल ना नोचना और गिरेबान चाक ना करना कि तुम फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हो, जैसा उन्होंने पैगम्बर खुदा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबत पर, यानी वफात पर सब्र फरमाया था, तुम भी मेरी मुसीबत पे सब्र करना, यानी कि इस तरह सब्र करना जिस तरह उन्होंने किया था। सूरत मुम्तहना की आयत वला यासीनका फी मारूफ के तहत अबुल हसन अलकलमी लिखते हैं, जनी उम्मे हकीम बिन हारिस ने अर्ज की, "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नेकी क्या है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हम उसमें आपकी नाफरमानी न करें?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुंह को मत नोचो, अपने रखसारों पर तमाचे मत मारो, अपने बाल मत नोचो और अखाड़ो, अपने गिरहबान मत चाक करो, अ, अपने कपड़े काले मत करो, हाय करके मत पकारो,
कब्र के पास मत खड़ी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों पर औरतों से बैत ली कि ये काम आप नहीं करेंगे। जब मुसलमान औरतें मुसलमान होती तो उनसे बैत ली जाती थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से कभी हाथ पे हाथ रख के बैत नहीं ली थी। मातमे हसैन की इब्तिदा जो है वो बहुत बाद की है। तारीख का ये मुतफिका बयान है कि हादसा करबला के बाद तकरीबन 352 सन हिजरी में इसकी इब्तदाई इब्तदा हुई थी। चनाचे हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं इब्ने अबी तालिब से जनी 352 हिजरी में इस साल मुहर्रम की 10 तारीख को माजदौला ने यानी ये जाहिर है कि उस वक्त हुक्मरान था। माजदौला ने ये हुक्म दिया कि बाजार बंद किए जाएं। औरतें मातमी लिबास पहनकर अपने चेहरे खोले हुए, सर के बाल बिखरे हुए, अपने चेहरों को पीटती हुई हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन अली बिन अबी तालिब पर मातम करती हुई बाजारों में निकले। तो ये शिया सुन्नी किताबों के हवाले आपके सामने और मातिम के आगाज की तारीख आप पर वाज़िया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनी जिसने हमारे दीन में नई बात नई रस्म निकाली वो मरदूद है। लिहाजा मैं दर्दमंदाने मिल्लत खैर ख्वाहाने दीन और मुतफक्रीन आखरत से जनी लिखने वाला कहता है कि अपील करता हूँ कि वो जज्बात की रूह में बहकर नहीं बल्कि नहायत संजीदगी और मतानत से रसूमात मुहर्रम पर गौर फरमाए, जिनका कुरान हदीस और फिका सुन्ना और फिका जाफरिया में सबूत मौजूद ना हो, बल्कि इनके खिलाफ मवाद मौजूद हो तो इनको वाज़ो नसीहत और कानून से बंद किया जाना चाहिए। इससे मुल्क के इस्तेहकाम और इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए रास्ता हमवार होगा इंशाअल्लाह ताला। ये था एक थोड़ा सा आ, जानने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए इस महीने में। अल्लाह ताला हमारी हदायत फरमाए और हम सब मुसलमानों को हदायत दे, गलत रस्म रिवाजों से हमारी अल्लाह ताला जान छुड़वाए और ठीक काम करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।